Thank you. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, good afternoon. If you are here in Pakistan and wherever you are joining us from around the world, I am Fasih Mehta. I'm the program manager at the National Incubation Center. And today I welcome you all to a very special episode of Gurus at NIC, where I have this opportunity to host a leader, a person with lots and lots of talent, a very, very diversified experience, Dr. Zafar Mirza. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. And thank you for joining us. Thank you very much for your kind words. And it's a pleasure. It's indeed a pleasure for us. So मैं भी थोड़ी देर पहले सबको बता रहा था. We'll be switching in English and Urdu for everyone to engage with and feel comfortable. कि हमने पहली बार अब एक proper hybrid session आज किया है, जिसमें जैसे हमने experience अगर physically है उसको कोशिश कर रहे हैं replicate करने के लिए online. Zoom पे भी हम live हैं और Facebook पे और दूसरे कैमरे से जो session hall है वो उनको दिख रहे हैं. यहाँ से हम हैं. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है हमारी आवाज सुनने में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि टीम जो है वो एडजस्ट कर दे. इफ ऑल हु आर ऑनलाइन कैन हियर इज फाइन देन वी विल प्रोसीड. सो एज आई सेड कि डॉक्टर जफर इज अ पर्सन with mashallah very rich experience and I have a very short brief profile of him to talk about which will tell you. So Dr. Zafar Mirza, you may know him more as the former State Minister of Health for Pakistan. He has also worked as the Director for Health Systems Development at the World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean. He is a medical doctor with a post-graduation in public health in developing countries from the London School of Hygiene and Tropical Medicine and a clinical stint in mental health. Before this, he was leading the Public Health Innovation and Intellectual Property team at the WHO headquarters in Geneva in Switzerland. And he did that for 6 amazing years. He also served as a regional advisor for essential medicines and pharmaceutical policies in the WHO regional office for 5 years prior to moving to WHO headquarters. For 12 years before joining the WHO, he was a founding executive director of a civil society organization, the Network for Consumer Protection in Pakistan. He has a long-standing experience of working at national, regional and global levels in public and private health sectors. He has extensively traveled, published and contributed to improving the public health in many countries. Thank you, sir. So thank you for joining us and let's start the discussion. The topic is very interesting. Health innovation by all, for all. And before I jump into the major question, what is health innovation? बल्कि innovation भी उससे पहले क्या है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके बारे में जानें. तो अगर आप थोड़ा सा अपनी early childhood के बारे में बता सकें, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और अपनी उस शुरू की जर्नी का जिसका मैंने आपके इंट्रो में अभी जिक्र नहीं किया, तो फिर मैं आगे इस टॉपिक की तरफ चलूँ. We can have better use of time. Well, thank you very much, Fasih, and thank you everybody here and those of you who have logged in and remotely with us this afternoon. I really feel very humbled with this introduction and with this opportunity. Well, first of all, as Fasih was saying, I'll be switching between English and Urdu, which I call Minglish. So I'll be speaking in Minglish. इसलिए कि हम सब की अंग्रेजी जो है वो आपकी तो बहुत अच्छी होगी लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं जब मुश्किल आ जाती है तो फिर मैं स्विच करती हूँ. मैं जी एक बड़ा हम्बल सा बंदा हूँ. मैं मेरी अर्ली एजुकेशन सारी जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में हुई है, गुजरांवाला में और सियालकोट में. और मैंने इंटरमीडिएट किया गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज से और मैंने ग्रेजुएशन किया, मेडिकल ग्रेजुएशन फ्रॉम रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज दक्षिण सिटी. और उसके बाद आपने बता दिया except this that I always wanted to be a psychiatrist and that's why I picked up mental health as an area for my specialization while I was a medical student. So there was a tinge of idealism
in that as well. But not just idealism. I thought really that Pakistan mein mental health is completely ignored area, and there is a silent suffering going on, and there is absolutely complete ignorance about the importance of mental health. तो वो मैंने 3 साल लगाए साइकेट्री में बड़ा दिलो जान से, and I cherish those years. लेकिन उसके बाद फिर few incidences happened which sort of pushed me towards public health side. Time doesn't allow me to go into those details, लेकिन I end up being if it is a category or if it is a profession or something that I can say that this was who I was 15 years ago. So I became a health activist. And health activist means people who are not satisfied with what they see around in health sector and want to change it or to become a change agent. तो वो जो अभी फसीह साहब बता रहे थे कि I started a network for consumer protection in Pakistan in those days with focus on health and especially pharmaceutical policies. क्योंकि मेरा ख्याल था कि उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो वो मैंने 10-12 साल काम किया और I continue to flirt with my psychiatric training also, so I try to also continue as a clinician psychiatrist. But 2-3 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि public health is too demanding if you want to do justice with it. Then I moved to completely towards public health, and at that point in time, then I decided to improve my education in public health. So I went to London, London School of Hygiene and Tropical Medicine, और वहाँ से फिर मैंने masters in public health in developing countries किया. I'll stop here. Otherwise, we will consume all this time. No, thank you so much. It puts a lot of things into perspective कि आपकी इसके पीछे motivation क्या थी जर्नी के पीछे. So जो आपने बात की कि as a health activist and as a change agent, how do you define innovation? Innovation को बहुत लोगों ने define किया है, but how in your way you would define innovation और उसकी क्या key determinants हैं कि ये पूरे हों तो अभी innovation. ठीक है, let's dive into this topic, and through this topic try to expand and explain and try to understand mutually that what this topic is and why we are here and why we are talking about it today. तो मुझे जब फसीह साहब ने कहा कि आपको हम लाना चाहते हैं टॉक के लिए, तो मैंने कहा कि आप हमें टॉपिक बता दें. So if he remembers correctly, I think within 5 to 10 minutes I responded to you with this topic because it was very natural for me to suggest this topic. And actually, the way I have organized my thoughts this afternoon was exactly in this way that I would first try to, even if you had not asked me, to explain the topic itself, because that will actually set the platform for our thinking and for our further discussion. और एक चीज़ और भी मैं बीच में बता चलूँ सबके लिए कि डॉक्टर साहब ने एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनाई थी जो मुझे उम्मीद है कि शायद वो आज सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था इनोवेशन का, और इनोवेशन को बहुत सारे लोग किस एंगल से किस जाविये से देखते हैं, इसका मानी क्या है, कुछ के लिए तकनीकी है कुछ के लिए नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आई एम श्योर वो आज कवर करेंगे. मैं कन्विंस था अपने माइंड में कि जब ये जवाब देने लगे थे मैसेज का कि काश यही बोले ताकि हम वो स्टोरी सुन सकें और आप सब तक पहुंचा सकें. So जी प्लीज, सॉरी फॉर दैट. So health innovation by all for all. Yeah, yes, by all for all. इसमें एक लफ्ज बड़ा important है. If we think about it, health. First of all, let's try to be on the same page about health. World Health Organization has struggled with this word. When the World Health Organization was coming together in 1947,
and in 1948 it completed its constitution. तो उस constitution में सबसे पहले जो important चीज़ थी उनके लिए वो ये था कि वो health को conceptualize कैसे करें. What is health? ये बड़ा important question है. अगर आप डॉक्टर से ज़्यादातर पूछें हेल्थ के बारे में कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, या फॉर दैट मैटर किसी से भी पूछें, तो जो एक जो इम्प्रेशन या इमेज ज़हन में आता है वो ये है कि इट्स ए डॉक्टर पेशेंट थिंग. Patient sitting across the table and doctor is listening and half listening and writing a prescription. लेकिन हेल्थ को जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. द वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाइनली केम अप विद डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, एंड देयर इज एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउ. जी हाँ, तो वो हेल्थ को उन्होंने इस तरह, और ये इसके ऊपर बेइंतहा डिस्कशन हुई और इसमें जो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स थे पूरी दुनिया से उनको कंसल्ट किया गया, एंड इवेंचुअली they could agree on this definition, which I am going to share with you in a minute. तो health जो है उसको उन्होंने इस तरह define किया कि health is a state of physical, mental and social well-being. ये इसका एक हिस्सा है. Health is a state of physical, mental and social well-being. इसका दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, और वो ये है कि I say it in one sentence. Health is a state of physical, mental and social well-being, and it is not just absence of disease. It is not just absence of disease. कोई बंदा अगर बीमार नहीं है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है, क्योंकि हो सकता है कि वो फिर भी हेल्दी ना हो. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको अगर हम ना समझें तो पब्लिक हेल्थ को नहीं समझ सकते. ठीक है. अच्छा, तो चूंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, इस पे ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है, बट आई विल जस्ट स्टॉप देयर. हेल्थ, इनोवेशन, second word in my topic. What is innovation? We are sitting in National Incubation Center, and all of you, presumably, one way or the other, are linked with innovation. ठीक है ना? तो innovation है क्या? ये भी एक बड़ी interesting discussion है, और इसके साथ भी लोगों ने बड़ा wrangle किया है कि what is the concept of innovation? For some, it is creating anything new. For some, it is when you think about innovation, तो invention ज़हन में आती है, और invention जो होती है वो tangible होनी चाहिए, आप उसे touch कर सकें, वो कोई product हो, वो नई हो, और वो पहले से ना हो वहाँ पे, तो आप ये कहते हैं जी inventor, आपने invent कर दी ये चीज़, तो इसलिए आप innovator हो गए. Actually, when you think about it, innovation also is a very interesting concept, and it goes much beyond invention and a product. To me, and I have myself actually struggled with this concept in World Health Organization when I was sitting there, because I was part of a group which actually tried to ultimately define health innovation, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा आपसे. वो आपने बनाई slide? ठीक है, इस पे आते हैं. अभी इसको अभी बंद करो. तो इनोवेशन पहले समझने की जरूरत है, हेल्थ पहले समझने की जरूरत है, फिर हम हेल्थ इनोवेशन की बात कर सकते हैं. ठीक है ना? तो इनोवेशन के ऊपर जब हमने सोचना शुरू किया तो क्लीशेड कॉन्सेप्ट्स तो यही थे जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्ट और समथिंग व्हिच यू कैन क्लेम एज इन्वेंशन. लेकिन दो तीन चीजें और एसोसिएट हो गई हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, इनोवेशन के साथ, ओवर द इयर्स, एंड स्पेशली ओवर द लास्ट आई वुड से a decade or 1.5 decades, when this word has crashed into our active development thinking. और वो
कॉन्सेप्ट्स जो इनोवेशन के साथ अटैच हो गए हैं वो ये है कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इनोवेशन इज नॉट। ये तो हम डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या है और वो वही टिपिकल हमारी वो है, लेकिन ये क्या नहीं है। तो उस पे लोगों ने फिर ये सोचना शुरू किया कि हाँ एक्चुअली तो ऑलरेडी लोग चीजें बहुत इन्वेंट कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, और एक्चुअली R&D जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो ऑलरेडी हो रही है और इसका एम भी नया नॉलेज और नया यानी आइडियाज को डेवलप करना है। So then what is the difference between innovation and research and development? Is every research and development an innovation? The question arises. Or if every innovation is based upon research and development? Answers are not very easy. It's a complex construct, innovation. तो मजीद जब आप इसके बारे में सोचें तो फिर, और ख़ास तौर पे मैंने जो ये कहा ना कि कुछ एसोसिएट हो गए हैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स वर्ड इनोवेशन के साथ, उनमें एक ये है कि इनोवेशन हाउ इट कैन एड्रेस द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड स्पेशली प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। जब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तो हेल्थ में खास तौर पे, तो उधर एम ये होता है कि ये किस तरीके से जो भी नई चीज बने उसको स्केल अप किया जा सके और वो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, और खास तौर पे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की नीड्स को पूरा कर सके। आमतौर पे जब हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करते हैं तो पीपल टेंड टू इग्नोर दीज एस्पेक्ट्स। वो प्योर टेक्निकल एंड प्योर इंजीनियरिंग एंड प्योर इलेक्ट्रॉनिकली सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन there are some soft social sciences concepts associated with the word innovation which are important to be appreciated and recognized. अच्छा, फिर ये है कि क्या इनोवेशन हमेशा कोई नई चीज़ ही होगी? ये भी गलत है, इसलिए कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और एग्जिस्टिंग जो डिस्कवरीज हैं उनकी रीपर्पसिंग भी इनोवेशन हो सकती है। यू गेट मी? कि ऑलरेडी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। एस्प्रिन, टैबलेट एस्प्रिन, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, दर्द के लिए, बुखार के लिए इस्तेमाल करते थे लोग। तो ऑल ऑफ अ सडन पीपल फाउंड आउट एंड दे वर्क ऑन इट कि ये एक्चुअली ब्लड थिनर भी है। तो इसको हम जो ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं या जिनको कार्डिक फेलियर में जो लोग जाते हैं या उनको कोई अटैक्स हुए होते हैं या ब्लड थिक जब हो जाता है तो उसके लिए एस्प्रिन दी जा सकती है। तो दिस वाज एन इनोवेटिव यूज ऑफ डिस्प्रिन व्हिच फंडामेंटली वाज डेवलप्ड एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बड़ी एक सुपरफिशियल सी वैसे तो दी है, लेकिन I was trying to make this point कि some existing technology and its reuse in a new way is also an innovation. So again, this discussion can continue, and innovation and the concept of innovation is so intellectually attractive that one can continue to talk about it. लेकिन मैं explain सिर्फ ये करना चाह रहा था कि innovation is bigger than sheer research and development, and there are some associated concepts with it, especially when you talk about innovation in a developing country context. Sir, जी, आपने ठहर मुझे टॉपिक उधर पूरा कर लेना। अब इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है बाय ऑल एंड फॉर ऑल। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये लिंक्ड है हेल्थ के कॉन्सेप्ट के साथ भी और इनोवेशन के कॉन्सेप्ट के साथ भी। और बाय ऑल और फॉर ऑल जो है ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ऑल्सो विद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कि आप जब भी कोई चीज ऐसी बनाएं तो एक तो उसका फायदा सब लोगों को हो सके या मैक्सिमम लोगों को हो सके, और दूसरे ये
कि उसके यानी इनोवेटर्स के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ख़ास तरह के लोग हों या वो फॉर्मल सेक्टर से हमेशा हों. Anybody can actually get involved in innovation, and hence the concept of outsourcing या crowdsourcing. Crowdsourcing में आप actually एक question launch करते हैं जिसमें कि आप तमाम लोगों को invite करते हैं कि भाई आपके कोई अच्छे ideas हैं तो ले आए. तो इसलिए मैंने ये concept use किया कि for all and by all. It can be for all, it should be for all, but it can also be by all. Back to you. Thank you so much. I really like the fact कि आपने health से start किया ताकि एक understanding हो जाए, to put things in perspective. So there are many innovations that you've seen in your different roles around the world, especially when you were there leading the team for innovation for health. Would you like to share an example or two of health product service innovations that fulfills all this criteria and that you believe as a true innovation that can scale? जी, बिल्कुल मैं इसके ऊपर आपको 20 एग्जांपल्स दे सकता हूँ और मेरा ख्याल है कि वो एग्जांपल्स समटाइम्स मेक अस अंडरस्टैंड बेटर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो मैं आपके लिए 3 एग्जांपल्स आज लेकर आया हूँ जो कि मैं बड़ा ब्रीफली आपके साथ इस पर बात करूँगा. The point here is not to just talk about the content of those examples in such a detail that it absorbs all the time that we have, but just to make a point that what kind of considerations and what kind of drivers are behind in the minds of those who indulge themselves into health innovation. Health innovation पे भी जरा बाद में बात करेंगे. अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि जो फसी जिसको रेफर कर रहे थे वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. A team of researchers from Canada and Cambodia were working in Cambodia, and they found out कि वहाँ पे the proportion of women in reproductive age were suffering from iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia. Anemia और भी बहुत वजहों से होता है. Anemia क्या होता है? Anemia होता है हेमोग्लोबिन की कमी हमारे ब्लड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट्स ए कैरियर फॉर ऑक्सीजन एंड इसके बगैर गुजारा नहीं होता. तो इसमें आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. एनीमिया और भी बहुत वजहों से हो सकता है, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया दैट इज ऑब्जर्व्ड in especially in developing countries and especially among poor people, and the reason behind it is lack of proper nutrition. ठीक है, तो कंबोडिया में जब उन्होंने ये फाइंड आउट किया तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की. तो एक कंबोडियन स्टूडेंट था who came up with this idea, to cut long story short, कि उसने कहा जी कि इसका एक ऐसा तरीका मैंने ढूंढा है कि अगर उसको हम स्केल अप कर लें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खत्म हो सकता है कंबोडिया. तो ही केम अप विद दिस आइडिया कि एक slab of iron which will be an alloy of few other metals or few other ingredients, उसको बनाया जाए और ख़वातीन घर में जब भी कुकिंग करें तो उस वो जो एक टुकड़ा है मेटल का उसको अपने बकेट में डाल लें. और वो उसने इस पर रिसर्च की और वो बड़ी लंबी रिसर्च थी. अब उसकी PhD का थीसिस था, बाद में वो बुक भी छपी. तो वो अगर बॉइलिंग वाटर में या समथिंग विच इज आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, हम हमारे यहाँ उसकी हम हंडिया पकाते हैं, दिन में 2-3 दफ़ा हंडिया पकती है घर में. अगर हर दफ़ा वो टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए तो उससे थोड़ा थोड़ा आयरन इस फॉर्म में रिलीज होगा कि वो उस सालन का या उस खाने का हिस्सा बन जाएगा. और अगर वो आप दिन में 2-3 दफ़ा जब वो खाना खाएंगे तो वो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इनोवेशन. लेकिन इसमें एक और सुपर इनोवेशन थी और वो ये थी कि कंबोडिया में जो फिश है
उसको समझा जाता है ए सिंबल ऑफ लक, इसलिए कि वो फिशिंग कम्युनिटीज वहाँ पे ज़्यादा हैं, ओशन बड़ा है, तो फिश को समझा जाता है एज ए सिंबल ऑफ लक। तो उसने वही जो वो स्लैब ऑफ आयरन थी उसको कास्ट किया एज ए स्मॉल आयरन फिश। अब वो स्मॉल आयरन फिश जो थी वो कल्चरली एकदम सबके लिए एक्सेप्टेबल हो गई कंबोडिया में, एंड पीपल वर यू नो वेरी हैप्पीली एक्सेप्टिंग दिस कि एक तो खैर यानी कि उनकी जो लक का सिंबल है वो उनके खाने का हिस्सा बन जाएगा, तो और वो सब ने एकदम से उसको एक्सेप्ट करके तो अपनी कुकिंग में उसको शामिल कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज नो मोर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन कंबोडिया नाउ। और ये शुरू हुआ था सारा 2008-2009 में, और वो जो फिर फिश उन्होंने बनाई वो बड़ी कॉमन हो गई। अब बाद में लोगों ने उसको कमर्शलाइज भी कर लिया, और कनाडा ने भी अपनी मोहर लगा दी, मैपल लीफ लगा दिया उसके ऊपर। लेकिन बहरहाल द पॉइंट इज कि ये एक ऐसी नीड थी which was out there, people were suffering, somebody came up with an idea, that idea was turned into culturally acceptable idea, and it was used and it addressed the problem. And so did the government have a role to play? मतलब अब इस कंबोडिया की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा है। So the public policy also picked it up and made it available on a very subsidized rate, ताकि लोग इजीली उनकी एक्सेस हो इसके ऊपर और वो इसे इजीली इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक एग्जांपल है हेल्थ इनोवेशन की। आई होप you are understanding what I'm saying, that why innovation must be developed in such a way which aims to address a larger problem in the community and developed in such a way that it is culturally acceptable, and then public policy also takes it up. दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। वैक्सीन्स के बारे में आप बहुत सुनते हैं, टाइम कीपिंग आपने करनी है, मैं तो वरना बोलता रहूँगा। बस अब आप एक एग्जांपल जरूर दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ठीक के साथ पाकिस्तान का जो आपने प्रॉब्लम्स बताई थी जी वो भी बताइए, ताकि हम उस पे बिल्कुल इसके बाद। तो एक अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में एक बेल्ट है कंट्रीज की, चैड, बेनिन और इस तरह के फ्रैंकोफोन मुल्क हैं, उसमें ज्यादा माली। इन मुल्कों के अंदर एक खास तरह की मेनिंजाइटिस हो रही थी बच्चों को, और उस मेनिंजाइटिस का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। यानी वो मेनिंजाइटिस क्या होती है? मेनिंजाइटिस ये होती है कि ये जो हमारा ब्रेन है इसके गिर्द एक झिल्ली होती है, उसको उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। उस इन्फेक्शन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो होती है किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया होता है। अच्छा, उसके लिए एक वैक्सीन बनाने की जरूरत थी, लेकिन इशू ये था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन मुल्कों के अंदर था। इन अदर वर्ड्स, फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और द कॉर्पोरेट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स देयर वाज नॉट इनफ मार्केट इन द वर्ल्ड। अच्छा, दूसरे ये कि जो जिन मुल्कों में ये था वो मेरा हाल कोई 10-12 मुल्क हैं, उन मुल्कों में भी ये गरीब लोगों में होता है। लिहाजा इवन इन दोज कंट्रीज अगर वो वैक्सीन डेवलप करते भी तो उसको ज्यादा प्राइस पे वहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। बट प्रॉब्लम वाज देयर एंड पीपल न्यू दैट अ वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड इजीली अबाउट इट। तो इसके ऊपर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुई। मैं भी उस WHO में था, WHO ने भी इसमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट किया। तो अबाउट 14 डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज केम टुगेदर। दे sponsored this research only for those countries, only for those people who are having these poor people actually। और वो उन्होंने इस वैक्सीन को, ये एक एग्जाम्पल समझी जाती है इनोवेशन वर्ल्ड में कि a problem was only limited to a poor part of the world and poor in that part of the world।
और उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद थ्रू एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक वैक्सीन डेवलप की गई और वो वैक्सीन कहलाती है मेनिनजाइटिस अफ्रीकन वैक्सीन। इसकी वजह से जब इन्होंने वो मैस कैंपेनिंग इसके ऊपर शुरू की तो इस वक्त उस पूरी बेल्ट में इस वैक्सीन लगाने की वजह से देयर इज नॉट ए सिंगल पेशेंट ऑफ मेनिनजाइटिस एंड एक्चुअली मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन प्रोटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ दिस। तो ये भी एक इनोवेशन की वो फॉर्म है कि जब आपको सोल्यूशन आप बना भी सकते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता या आपको ये इंसेंटिव नहीं होता कि ये मतलब स्केल अप उस लेवल पे नहीं हो सकती जिस लेवल पे दूसरी फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स हो रही थी। इसमें लिमिटेड मार्केट बट अ बिग प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ पुअर पीपल। तो उसके लिए भी इनोवेट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए और ये पॉसिबल है। तो एक्चुअली ये एग्जांपल आप, मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसके बारे में मजीद पढ़ सकते हैं, यू कैन गूगल इट, दिस एग्जांपल एंड द प्रीवियस एग्जांपल दैट आई गेव। तो इस तरह की बीसीओ एग्जांपल्स है। मेरे पास एक और एग्जांपल है, मैं मे बी 15 सेकंड्स में आपको बताता हूँ। दिस इज जयपुर फुट। ये जयपुर इंडिया के अंदर डेवलप हुआ कि जिन लोगों की एम्पुटेशन हो जाती थी लेग की, उसके लिए जो आर्टिफिशियल लिम्ब बाहर से मंगवाना पड़ता था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो लोकल रिसर्चर्स ने लोकल एक आर्टिफिशियल लेग डेवलप की विद लोकल मटेरियल्स जो कि $50 से भी कम थी एंड इट हैज रियली ट्रांसफॉर्म्ड द प्रोस्थेटिक interventions among people without legs। और उसकी वजह से इसको बड़ा रिवॉर्ड भी किया गया इस इनोवेशन। तो अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन रीड अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड जयपुर फुट। और इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बट आई स्टॉप देयर। सो थैंक यू सो मच। तीनों एग्जांपल्स में एक बात बड़ी कॉमन है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एब्सोल्युटली रास्ता निकल ही आता है और वो दर्द होना जरूरी है। आज हम जब हेल्थ इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो एक और भी वजह थी उस दर्द की, और वो दर्द है हमारा कॉमन गोल कि पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर के अंदर। और कुछ का जिक्र आपने हमसे कुछ अर्सा पहले एक हमारी नशिस्त में किया जिससे हम बहुत मूव हुए कि इसमें हम एज यूथ को उनको मोबिलाइज करके क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मैं उस पर आना चाहूँगा कि वो अगर, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर एज योर पोर्टफोलियो दैट यू लेड hundreds of those challenges, but what would be the top 5 if I may ask that you would qualify that these are the top 5 biggest healthcare problems in Pakistan? ठीक, देखिए अगर हमने हेल्थ में इनोवेट करना है और इस इनोवेशन इन हेल्थ को प्रमोट करना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस। नीड्स क्या है, कौन से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि जिसके लिए इनोवेशन की। तो मैं आई विल जस्ट लिस्ट few in front of you just to highlight the scale of the problems that we have and also okay I'll come to this point later। मसलन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है मैं ये समझता हूँ वो तो है पॉपुलेशन। मतलब हम we are reproducing like rabbits। किसी काम में अगर हमने तरक्की की है तो वो ये है कि कोई मुझे बता सकता है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? कोई बता सकता है मुझे? एनीबॉडी? वाइल्ड गैस जी? नो। अभी कितनी है ये पहले बताओ। 22 मिलियन, 220 मिलियन, ठीक है, 22 करोड़ आवाम, तो वो 220 मिलियन है, ठीक है। तो ये 220 मिलियन पिछले 70 साल में हम अब अंदाजा लगाना कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो हम कोई 36 मिलियन थे, 36 मिलियन, और अब हम हो गए हैं 220 मिलियन। 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का पॉपुलेशन वाइज, और एंड द वे वी आर ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, we will by 2050 I think we'll become around about 400 million, ठीक है।
आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, अब तो हो ही नहीं, मतलब हम जिस तरह हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए उसमें हम उतना इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम उसे डबल भी कर लें तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से कम डबल होना चाहिए। ये एक डेवलपमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमारे यहाँ आप जिस रफ्तार पे अभी हम डेवलप कर रहे हैं इकोनॉमिकली, अगर हम इसी रफ्तार पे डेवलप करते रहें तो all this development will be diffused by the population growth. Water scarcity, food insecurity, diseases. अच्छा, अब इसको रोका कैसे जाए या इसको कम कैसे किया जाए? बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। अब मैं आपको एक और स्टेटिस्टिक बताने लगा। पाकिस्तान में हर साल एक यानी अंदाजे के मुताबिक बेस्ड अपॉन स्टडीज 9 मिलियन वुमेन बिकम प्रेग्नेंट। 9 मिलियन प्रेगनेंसीज होती हैं हर साल। एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पता ये लगा कि जब क्वेश्चन आंसर्स हुए कपल्स के साथ, पता ये लगा कि इनमें से 4 मिलियन प्रेगनेंसीज जो हैं वो अनवांटेड हैं। इट्स शॉकिंग। 4 मिलियन प्रेगनेंसीज आर अनवांटेड। यानी कि अगर उन लोगों के पास ये नॉलेज होता और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अवेलेबल होते तो ये प्रेगनेंसीज ना होती, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी वैसे अवेलेबल हैं, हमें पता है कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे कैसे यूज करने चाहिए, कब यूज करने चाहिए वगैरह वगैरह। 9 मिलियन प्रेगनेंसीज में से 4 मिलियन प्रेगनेंसीज को बड़ी हद तक रोका जा सकता है कि अगर उनको बवक्त ज़रूरत अवेलेबल कर दिया जाए द यूजेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में। ना सिर्फ ये कि कर नहीं पा रहे बल्कि हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। हमारा एक टर्म यूज करते हैं हम, कॉन्ट्रासेप्शन प्रेवलेंस रेट, CPR, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, ये हमारा वन ऑफ द लोएस्ट है एशिया में। और हमारा ग्रोथ रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। वी हैव बीटन इवन सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब ये एक चैलेंज है। आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, बट देयर इज ए चैलेंज दैट हाउ टू मेक दोज कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ इस एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमें हेल्थ इनोवेशन में हमारे फोकसेस कहाँ पे होने चाहिए। अच्छा, अब यही बात मुझे एक और बात की तरफ ले जा रही है, वो ये है कि जब मैं हेल्थ और इनोवेशन को जब एक्सप्लेन कर रहा था, खासतौर पर इनोवेशन में, मैंने प्रोडक्ट की बात की। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनोवेशन का वो ये है कि इनोवेशन इज नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट एंड कैन नॉट बी ऑलवेज अ प्रोडक्ट। Innovation can also be a service. It can also be a delivery method of that service or a product. It can even be a policy intervention or innovative policy making and its implementation. So innovation को आप reduce ना कर दें सिर्फ एक tangible product के तौर पे, बल्कि अपना horizon broad करें इनोवेटिव वेज ऑफ थिंकिंग के ऊपर कि जो ट्रांसलेट हो सकते हैं ना सिर्फ प्रोडक्ट्स की सूरत में बल्कि सर्विसेज की सूरत में भी और पॉलिसीज की सूरत में। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक चैलेंज रखा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में इन्फेंट मॉर्टेलिटी, अगर 1000 बच्चा पैदा होता है तो 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले 61 बच्चे फौत हो जाते हैं। 1 साल की उम्र, बिफोर सीइंग देयर फर्स्ट बर्थडे। अब ये आपको बात समझ नहीं आएगी कि 61, देन व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। ईरान में यही फिगर 13 है, इंडिया में यही फिगर जो है वो 32 है। इंडिया में
तो इस तरह अफगानिस्तान इवन इज बेटर देन पाकिस्तान, वहाँ पे 52 है ये फिगर, हमारी 69। अगेन हमें ये भी पता है कि बच्चे किस वजह से मरते हैं, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, चाइल्ड बर्थ। लेकिन ये वो चैलेंजेस हैं कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के होते हुए भी इनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हम ओवर द डिकेड्स। सो दीज आर दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस कि जिनके ऊपर हमारी हेल्थ इनोवेशन को फोकस करना चाहिए। इसी तरह हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसी तरह पाकिस्तान हेपेटाइटिस में इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है हमारी। ट्यूबरक्लोसिस, पाकिस्तान is a country with 5th largest burden of disease in the world. इसी तरह पाकिस्तान में 40% of the children are stunted in their growth. Stunted growth बड़ा खौफनाक concept है. Give me a minute to explain this to you. अगर पहले 1000 दिनों में बच्चे की स्टंटिंग को अगर अरेस्ट ना किया जाए या एड्रेस ना किया जाए तो ये बच्चे के लिए इरिवर्सिबल स्टंटिंग है। और स्टंटिंग फिजिकली मींस दैट यू आर शॉर्टर एंड अंडरवेट देन योर एज एंड यू आर आल्सो लेस इंटेलिजेंट बिकॉज देयर इज अ मेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्टंटिंग। इमेजिन करो यार, 40% बच्चे, अगर 100 बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में तो उनमें 40% स्टंटेड है। You are actually losing near to half of your next generation. ठीक है? आपको इंटरवेंशंस भी पता है क्या करनी है। बेसिकली इट्स ए न्यूट्रिशनल इशू। माओ को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती जब वो प्रेग्नेंट होती है। दैट इज द प्राइमरी इशू। कौन इनोवेट कर रहा है इसके लिए? So again, Fasih will dislike me after a while because I just continue to speak about these things, and I'm not a good timekeeper in this sense. But the point is कि एक मिसाल, और मेरे पास 20 और मिसालें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक मिसाल इनमें ऐसी है कि जिसके अंदर हमें कुछ ड्रास्टिक मेजर्स, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। मैं इस पे भी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने बात सही की और ये काफी अलार्मिंग फिगर्स हैं। हम सब के लिए सोचने का मकाम है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हम घिरे हुए हैं तो उसका मतलब है कि इतनी ही अपॉर्चुनिटी है सॉल्व करने की। एब्सोल्युटली। और इतनी ही अपॉर्चुनिटी है स्केल करने की, इतनी ही अपॉर्चुनिटी है इनोवेट करने की। लेकिन फिर आपसे एक और सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में अगर इतनी अपॉर्चुनिटी है और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा इसमें किरदार है कि वो आ सकता है, गवर्नमेंट ने इनेबल करना है, तो अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या नहीं हुआ क्योंकि वो ज्यादा लंबी गुफ्तगू हो जाएगी शायद, पर अभी तक जो कुछ अच्छी बातें हुई हैं, खास तौर पे टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है, रिसेंटली आपने जो कोविड के हवाले से एक बहुत बड़ा जो इक़दाम था नेशनल लेवल पे इसको स्टेयर करना, जबकि ये प्रोविंशियल मैंडेट है, काफी हद तक डेलीगेटेड है, और उसमें टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है अब इन प्रॉब्लम्स को इनोवेट करने में, ताकि जो हमें लोग सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं और हेल्थ इनोवेशन में एक्साइटमेंट रखते हैं कि कुछ करना है, तो उनके लिए कोई मैसेज भी इसमें जा सके। एंड देन आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू ऑडियंस क्वेश्चन जो हमारे पास आए। अच्छा, इसमें सबसे पहले पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को समझने की जरूरत है अगर आप उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं। पाकिस्तान, like many other developing countries, but Pakistan is one of the worst countries in the sense that we have ignored the value of human health and the importance of investing in human health. हम इतने मायोपिक हैं इस सिलसिले में और इतने कोता भी हैं, सॉरी मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ, इतने इग्नोरेंट हैं इस चीज़ के बारे में कि हम ये नहीं समझते कि अगर लोग हेल्दी नहीं होंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, और अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसको राइट्स के हवाले से ना भी देखें,
अगर आप इसको मोरालिटी के हवाले से ना भी देखें, अगर आप इसको एथिक्स के हवाले से ना भी देखें और प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, तो देयर इज ए ह्यूज वैल्यू एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क नाउ व्हिच एक्सप्लेन्स अस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन हेल्थ. You put $1 in human health, you get $40. इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकती. And there is, I'm not just inventing these things. There is evidence for this. Actually, जब मैं मिनिस्टर था तो मैंने वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट की कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टिंग इन अ केस फॉर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ आपको डेवलप करना चाहिए. And it is happening now and it will become available. ठीक है जी. इन्वेस्टिंग इन हेल्थ. तो पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि देयर इज ए इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, नॉट जस्ट मॉरल केस, नॉट जस्ट एथिकल केस. वन. नंबर टू, ये चीज समझने की जरूरत है हमें कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है. ये बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है समझने वाला. अक्सर लोगों को इस बेसिक रियलिटी का नहीं पता, और वो ये है कि पाकिस्तान में 70% हेल्थ केयर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. 70%. In other words, the government or the public sector is not providing health care to the people of Pakistan more than 30%. ठीक है. और तीसरी और एक बहुत ही अहम चीज जो समझने वाली है वो ये है कि हमने हेल्थ केयर को भी ये समझ लिया हुआ है कि ये सिर्फ डॉक्टर पेशेंट और दवाई का नुस्खा होती है. अब आई विल टेक यू बैक टू द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. तो 5 तरह की सर्विसेज हैं जो हेल्थ में आपको पहुंचानी चाहिए लोगों को. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रोमोटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, rehabilitative healthcare services and palliative healthcare services. लेकिन हम जब हेल्थ केयर की बात करते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चनर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ और आप सबको कहूँ कि इस पे कमेंट करें, तो आई एम सर्टन कि 95% से ज्यादा आप जिस हेल्थ केयर की कॉन्सेप्चुलाइजेशन में शेयर करेंगे वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज हैं. जबकि 4 और तरह की सर्विसेज हैं, अगर वो प्रोवाइड ना करें तो आपकी ये स्टेटिस्टिक्स जिनकी मैं बात कर रहा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, कोविड फॉर दैट मैटर, ये आप इनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, रिहैबिलिटेटिव केयर के ऊपर डिपेंड करता है. अब कोविड के लिए क्यूरेटिव केयर जो है वो तो 2.5% जो कोविड से लोग मुतासर होते हैं, सिर्फ 2.5% ऐसे केसेस होते हैं कि जिनको क्रिटिकल केयर में भेजना पड़ता है. बाकियों को तो प्रिवेंशन और प्रमोशन की जरूरत है. ठीक है. तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज़हन में रखने वाली. कौन कौन सी? एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, दूसरे द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोविजन इन पाकिस्तान बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड द थर्ड वन द डाइवर्सिटी इन द हेल्थ केयर सर्विसेज which is not limited to only curative services. Having said this, अब बात ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो इतने सारे चैलेंजेस हैं तो इनको एड्रेस करने के लिए हमें क्या करने की. The importance of public policy remains, वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को हैवीली और प्राइवेट सेक्टर में भी इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूसिव. मैंने जितनी इंजेन्युइटी देखी है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में, उतनी शायद फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी नहीं. गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद में जो मैकेनिक्स है ना, वो उनसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है, लेकिन ना उनको अंग्रेजी आती है ना उनको गूगल का पता है. ठीक है. लिहाजा इस तरह के चैलेंजेस हैं. इतना बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट पूल है. अगर हम थोड़ी सी पहले अपने बैरियर्स को अगर हम ओवरकम कर लें तो हम अनलीश कर सकते हैं पाकिस्तान में एक ह्यूज पोटेंशियल विच कैन बी डायरेक्टेड एट हेल्थ इनोवेशन. हमारा ये काम होना चाहिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का, गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का,
डेवलपमेंट पार्टनर्स का, एंड आई एम वेरी एक्टिवली प्रमोटिंग दीज थिंग्स, कि हम अपने लोगों को उनके सामने, जिस तरह मैंने आपके सामने कुछ मिसालें दी चैलेंजेस की, इनको प्रॉपरली पैकेज करके लोगों के सामने फ्लोट करें और लोगों के आइडियाज इनवाइट करें उसके लिए और उनको इंसेंटिवाइज करें। हमने आपके साथ एक नेशनल हेल्थ हैकाथॉन भी किया जी जी, जिसमें मैं सबको ही बताना चाहूँगा, मिनिस्टर साहब के डॉक्टर साहब उस वक्त मिनिस्टर थे और कोविड आया था, कोविड पे बहुत सारा काम हो रहा था, कुछ लोग वेल्व से काम कर रहे थे, वेंटिलेटर्स पे काम कर रहे थे, लेकिन हमने ये सोचा कि कोविड इज वन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस, व्हाट इफ मोर काम, तो हम प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रमोशन साइड पे वी जॉटेड डाउन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जो मजे की बात है, कोलैबोरेशन की जो एक बात की आपने डॉक्टर साहब और आपने दूसरा जो बड़ी अच्छी बात की वो ये थी क्राउड सोर्सिंग। हमें 1246 एप्लीकेशंस आई एक हफ्ते के सिर्फ अरसे में 11 ममालिक से, और उसमें से जो विनर है डायस्पोरा से है वो जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं और उस आइडिया को ज्यूरिख में भी अवार्ड मिला और हमारे पास सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा बिकेम एक्टिव। चाहे आप शिकागो उठा लें, आप वाटरलू ले लें, क्या कहते हैं जोहान्सबर्ग से, बिकॉज इट वाज सच अ बिग कॉज। तो एक प्लेटफॉर्म सिर्फ 10 दिन के अंदर इतना कुछ इनेबल करता है। और बाय द वे 25 पार्टनर्स थे हमारे साथ, यूरोप से बहुत सारे डॉक्टर्स शामिल थे, अमेरिका से टेक्नोलॉजी पार्टनर्स थे। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज की इस नशिस्त के बाद हम मजीद बात करें। मैं उसमें थोड़ा सा जिक्र भी करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कि ये जो टॉप प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस भी हमने ही निकालने हैं। तो क्यों ना हम एक सीरीज का आगाज करें जहाँ पे हम एक एक को अनपैक करें, चाहे हैकाथॉन्स के जरिए करें और सोलिसिट करें आइडियाज को और मिलके उनके कोई ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करें जहाँ आपके जो इतना माशाल्लाह अच्छा नेटवर्क है उसके जरिए, आपके एक्सपीरियंस के जरिए, और हम भी जो कुछ एज NIC एज टीम अप कर सकते हैं, एज जैज एज MOIT कर सकते हैं, वो करें, उनको एक्सेस दें उस मार्केट का और उस ग्रोथ का। सो एब्सोल्युटली मेरे नजदीक बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन जो क्लोजेस्ट एनालॉजी मेरे ज़हन में आती है ना, वो अभी ये हमारे ज़हनों में, आई एम सॉरी टू मेंशन दिस, लेकिन बड़ी फ्रेश एग्जांपल है। अभी ये जो मोटरवे केस हुआ है, तो उस पर जब लोग अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के या कॉफी शॉप्स में बैठ के तबसरे करते हैं, तो वो ये होता है कि यार इनमें से किसी एक बंदे को पब्लिकली अगर लटका दिया जाए ना, तो बहुत लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि ये अब हमने हरकत नहीं करनी इस तरह की, ठीक है। और ये एक जिसे क्या कहते हैं, एक मतलब अच्छी चीज को प्रमोट करने का ये तरीका होता है कि आप लोगों को डरा दें उससे कि, और गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट शो करे कि हम इसके लिए ऐसे करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इनोवेशन है, आप कोई एक अच्छी इनोवेशन उसको ब्लो अप कर दें पाकिस्तान में, इंसेंटिवाइज कर दें फुली, उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट होगा बाकी लोगों के ऊपर कि लोगों को ये अंदाजा होगा कि अगर हम कोई चीज डेवलप करें, कोई नया आइडिया लेकर आए, तो ये भी हो सकता है कि वी कैन बी नेशनल हीरो और वी कैन बी नेशनल नेम। तो जिस तरह इसका नेगेटिव एक इफेक्ट होता है ना, मैंने मिसाल दी आपको, इसी तरह इनोवेशन की जो इनकरेजमेंट है या जो उसका इंसेंटिव सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। 2-4 इस तरह की अगर एग्जांपल्स बन जाएं, there will be a floodgate open for people coming with ideas। तो मैं बिल्कुल आपके साथ इस पे मुत्तफिक हूँ कि अगर आप कोई इस तरह की चीज करना चाहें हेल्थ पे खास तौर पे, तो आई बी वेरी हैप्पी टू। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त ऑडियंस में भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ स्टार्टअप्स मौजूद हैं जो हेल्थ टेक में काम कर रहे हैं। हमारे पास एक स्टार्टअप है जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में कर रहे हैं, एक है जो ब्रेन ट्यूमर के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए डायग्नोसिस को आसान कर रहे हैं, और एक हैं जो अब प्रेडिक्शन के एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, और इसी तरह से डायबिटीज की प्रेडिक्शन पे। और मेरे ख्याल में अगर इनके पास भी ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस और मेंटरशिप अवेलेबल हो, दे कैन ग्रो एंड मेनी अदर्स कैन आल्सो ग्रो। मैं सिर्फ इन्हीं तक ये मुहित नहीं रख रहा, आप सबको भी जो सुन रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, ये ऑफर अवेलेबल है। इंशाल्लाह जल्द इस पे प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे। मेरे पास सवालों का ढेर लग चुका है, जो जूम पे आ रहे हैं, जो फेसबुक पे आ रहे हैं, और
मैं पहले ही पेशगी माजरत करता हूँ कि जितने ज्यादा सवाल हैं इतने शायद मैं पूछ ना पाऊँ। यहाँ पे ऑडियंस से भी हम सवाल करेंगे और मेरे पास भी कुछ सवाल थे, लेकिन मैं अब अगेन वक्त की किल्लत की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ क्विकली। लेकिन बिफोर मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा और मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम क्विकली और भी चीजें टच कर लें। सो ब्रीफली, दुनिया में 5G का इस्तेमाल हो रहा है या ML का हो रहा है, डेटा सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बन गया क्योंकि जितना कुछ डिजिटाइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए इनोवेट हो रहा है, चाहे उसमें IoT डिवाइसेस हो, अब आप वेरिएबल्स पहनते हैं, आपका डेटा ऑनलाइन क्लाउड में पड़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, बहुत कुछ। तो पाकिस्तान में जब हम कानून की बात करते हैं, पॉलिसी की, कानून साजी की बात करते हैं, अभी यकीनन हम पीछे, लेकिन हम उतने रेगुलेटेड नहीं जिस तरह के वो वेस्टर्न मार्केट्स हैं। उनमें डेटा प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जब किसी ने खास तौर पे एज अ स्टार्टअप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक्सेस लेना हो ऐसा डेटा को, तो डेटा अवेलेबल भी नहीं होता, और अमूमन किसी के साथ पार्टनर करना हो, शराकत करनी हो, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये काफी सारे सवाल मेरे ख्याल में जो इसमें हैं पार्टनरशिप के हवाले से, वो भी इस वाले क्वेश्चन से एड्रेस होते हैं। तो इसमें आपकी उनके लिए क्या व्हाट्स योर एडवाइस? बिल्कुल, और बड़ा अंडरस्टैंडेबल है अगर लोग ये बात रेज कर रहे हैं। देखें, मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम जो है आज की दुनिया में विदाउट डिजिटल हेल्थ इज नॉट पॉसिबल। इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि दो वजह उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपकी ये जो मैंने सारे स्टेटिस्टिक्स आपके सामने खौफनाक किस्म के शेयर किए हैं, ये सारों ने एड्रेस होने प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के ऊपर, बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर, रूरल हेल्थ सेंटर्स के अंदर, और वहाँ पे अभी भी वो वेरी बैड लुकिंग एंड वेरी बैडली केप्ट रजिस्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी भी लिखा जाता है सब कुछ, और वो इतना फॉल्टी डेटा होता है और वो किसी के काम नहीं आता वो डेटा। लिहाजा जिस मुल्क ने भी तरक्की की है हेल्थ सेक्टर में, एक तो उन्होंने अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग किया। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत नहीं है। I might be making a very controversial statement here. In Pakistan, country like Pakistan, आपको tertiary level 5-star hospitals की जरूरत नहीं है। आपको modest but well functioning digital primary health care centers की जरूरत है। वो जब तक नहीं बनेंगे आपके statistics improve नहीं हो सकते, और कभी किसी मुल्क के नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात यह है कि रेफरल सिस्टम के बगैर कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं चल सकता। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली, अब ये मैं आपको जो फिगर्स देने लगा हूँ ये रिसर्च बेस्ड फिगर्स हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तकरीबन 250 के करीब एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं। वो 5 तरह की सर्विसेज पे मुश्तमिल, जिनकी मैंने पहले बात की, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव। वो 5 सर्विसेज का मजमुआ यानी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको डिलीवर करना है बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल के ऊपर। अगर वहां पे मसला ठीक नहीं हो सकता तो फिर उसने रेफर होना है RHC पे, फिर तहसील हेडक्वार्टर पे, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और फिर टर्शरी लेवल। बाय द टाइम यू रीच टर्शरी लेवल हॉस्पिटल, 30 से ज्यादा सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, 70% of essential health services can be provided at primary healthcare level and secondary healthcare level। लेकिन ये रेफरल सिस्टम उस वक्त तक नहीं चल सकता जब आपका डिजिटल सिस्टम ना चल रहा, जब आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ना हो, जब तक आपके NIC के साथ आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स ना जुड़े हों। अगेन दिस इज और पाकिस्तान जैसा मुल्क कि जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी इतनी बड़ी इंटरनल मार्केट है, वहां पे तो इसकी मतलब इतनी गुंजाइश है इन चीजों के अंदर इन्वेस्ट करने की, एक्सपेरिमेंट करने की। अच्छा, कोविड-19 के दौरान we have seen the use of technology and its advantages, or we could control to large extent the spread of the disease in Pakistan because we optimally use technology. इसकी कोई अगर एक बहुत क्विक आप एग्जांपल दे सकें? Disease surveillance system,
डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम क्या होता है? डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम ये होता है कि योर आईज एंड ईयर्स इन द कंट्री टू पिक द ट्रेंड्स थ्रू पिकिंग द केसेस of COVID-19 in real time and reporting them centrally. अब वो कैसे करेंगे आप? अगर आपके पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं है तो वो तो पहुंचते पहुंचते आपको क्या का क्या हो जाएगा और यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल. तो हमने कोविड-19 के लिए जो हमारा पोलियो प्रोग्राम है उसके ऊपर पिगी बैक किया, क्योंकि पोलियो प्रोग्राम का डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान. एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन. 2.5 लाख वर्कर है हमारे पास पोलियो का पाकिस्तान में. उनको हमने कोविड के ऊपर लगाया और उनकी ट्रेनिंग्स की और उनका एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, IDRS. उससे हमने उसके ऊपर पिगी बैक करके तो ये हमने डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम विद इन डेज एस्टैब्लिश किया. और हमारे बहुत जबरदस्त हमारे साथ IT के लोग थे कि जिनकी मदद से हमने ये किया. एंड वी कुड नो कि हमारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं डिजीज के बारे में. ओनली देन यू कैन मेक इंटरवेंशन. बिल्कुल ठीक है. सो इट वाज मोर डेटा ड्रिवन. Absolutely. और इसमें मैं अब चूंकि टाइम बहुत हमने ले लिया है, मैं चाहूंगा कि हम कुछ सवालों में जवाब दें, फिर आपसे भी सवाल पूछेंगे. मैं आपसे सवालों पर स्विच हो रहा हूं. सबसे पहले तो बहुत सारा जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. People are thanking you for controlling COVID in Pakistan. So thank you, sir. I believe everyone here also shares the concern. मियां तलहा ने भी कहा, बहुत सारे और लोगों के भी मेरे पास आए. अब्दुल बासित का एक सवाल है जी. There is HIPAA compliance in the USA. What is the compliance mechanism in Pakistan? HIPAA compliance? जी. ये for HIPAA compliance है, for technology integration data के हवाले से. लेकिन क्योंकि अभी तक कोई standards है नहीं, तो इस पे कोई क्या काम हो रहा है? टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स के हवाले से, डेटा के हवाले से, प्राइवेसी के, सिक्योरिटी के, या अभी ये बहुत फार फेच्ड, लो प्रायोरिटी? थोड़ा फार फेच्ड है, लेकिन इट शुड नॉट बी, बिकॉज अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो जाहिर है कि आपको उनको फायरवॉल भी करना पड़ेगा और आपको उनको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी. सो लेकिन आई मस्ट कन्फेस वन थिंग कि मसलन नादरा जो पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड जारी करता है, it is one of the best systems in the world and I have seen it very closely. जब हम करने पे आ जाते हैं ना कोई चीज तो बड़ी अच्छी करते हैं और उसी के साथ हम लिंक, मैं चाहता हूँ कि हम करें मेडिकल रिकॉर्ड्स और उनके अंदर भी वही स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस जो है ना वो हम इंट्रोड्यूस करें. यूएसए से डॉक्टर मेहर खान वो कह रही हैं, in order to change the reactive healthcare to proactive healthcare, would a public-private partnership model between the Ministry of Health and private thriving businesses such as IT or finance companies to purely address social determinants of health such as nutrition, physical activity, housing, transport, low-skilled labor, would this be the right step to take next? I could not agree more. जो ये कह रही हैं महर, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ ख़ास तौर पे अपने मिनिस्टरशिप का जो मेरा टेन्योर था उस एक्सपीरियंस के बाद कि मैं ये कहता हूँ, फिक्रा फिर लोग थोड़ा माइंड कर जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि हेल्थ सर्विसेज आर टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द पब्लिक सेक्टर. वेरी वेरी वेल. ठीक है, एक बात. और दूसरी बात ये है कि मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर डिलीवर कर ही नहीं सकता हेल्थ सर्विसेज को रिलायबली एंड सस्टेनेबली. इसलिए we are actually now talking about major public-private partnerships in health service delivery in Pakistan. उसके बगैर ये सिस्टम ठीक ही नहीं हो सकता. Absolutely. और इसी एक पार्टनरशिप के एग्जांपल भी है. बट एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसको प्रिवेंटिव केयर में आने की भी जरूरत है. प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑब्वियसली दे लुक फॉर द बॉटम लाइन, तो उनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि क्यूरेटिव केयर में. सो प्राइवेट सेक्टर के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो ऐसे इनोवेटिव इंटरवेंशन सामने लाएं कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ को भी कवर करें, और ये पॉसिबल है. थैंक यू सर. एंड इसी प्राइवेट पार्टनरशिप की एग्जांपल है ड्यूरिंग कोविड नेशनल हेल्थ हैकाथॉन. उन्होंने पार्टनर भी किया. अभी उनका क्वेश्चन आया. डॉक्टर आमिर बर्नी है जी यूके से. ये एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, उसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, pleasure to hear Dr. Zafar Mirza speaking with such eloquence and with such in-depth insights about past and current issues related to health. It's a pleasure to be part of Hackathon and also to listen to this. Very impressed by the ideas that you've shared, the inspirations. But आगे लिखते हैं, what measures would Dr. Mirza suggest to bring in more entrepreneurial interest in Pakistan's healthcare, especially in health? हाँ जी, public sector need to become humble, and public sector need to become mindful of its limitations and the potential of the private sector. जब तक ये paradigm shift नहीं ना होती public sector में, और हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता, not at speed enough that we want to see it, but it is happening. लेकिन जब तक ये mind shift नहीं ना होगा, हमारे issues physical नहीं है, हमारे mental barriers हैं, और हमारे क्लीशेड और हमारे बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप थिंकिंग है पाकिस्तान में। अगर हम इसको ये बैरियर्स खत्म कर दें, तो मैंने जो 15 महीने में देखा है उसमें पीपल आर डाइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, पीपल रियली वांट टू सी चेंज इन पाकिस्तान एंड दे आर विद। हमने एक हेल्थ डायस्पोरा का इनिशिएटिव, आमिर बनी जो बात कर रहे थे, आमिर बनी, आई नो हिम वेल, ही इज एक्चुअली लीडिंग Pakistani doctors abroad who want to contribute to Pakistan and its development in health sector, और बड़ा काम कर रहे हैं ये, और बहुत लोग तैयार हैं इसके लिए। फिर हमने इसके लिए एक इनिशिएटिव भी लिया याराने वतन के नाम से, और उसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं अब। लेकिन हमें सिर्फ वो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड देनी है और वो इंसेंटिव सिस्टम डेवलप करना है पब्लिक सेक्टर में कि लोग यहाँ पे आएँ तो उनके देखा देखी और लोग आए, बजाय इसके कि जो लोग आए उनके तजर्बात से बाकी लोग भी बात करें। थैंक यू सर, एंड आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो ये आपने कम्युनिटी की जो सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी का, प्राइवेट सेक्टर का सवाल किया, मेरी डॉक्टर साहब ने उसको बहुत बेहतर आंसर कर दिया है। हमारे पास एक और सवाल है, मैं इस पे जाता हूँ, और बिफोर आई गो देयर, ऑडियंस से भी कोई सवाल है? अच्छा, पहले आप जी अपना नाम बताइए और अपना सवाल। नामी, ये आप मेरे सामने। सेविंग हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़े जो अभी सारा काम किया है डॉक्टर मैनेजमेंट के ऊपर, हम लोगों ने इसके ऊपर अपना छोटे लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट किया था इंटरनेट के बाद। We tried to remove part of punishment from 5 public to 5 private schools in Bigwal, and we were actually able to accomplish that on a major level as well. Bigwal. In Bigwal, this is the community about 15 minutes outside of Islamabad, near Barpur. My question on that, I would like to know if the mental health student falls under the purview of the Education Commission, or would that fall under the Health Ministry? That's one part of my question, and the second part of my question would be: is there any focus on the mental health in the Health Ministry at all? जी बिल्कुल. First of all, I would be very interested to know about your project because of my own interest in mental health. इसका मैंने शुरू में बताया था. दूसरी ये कि mental health falls under Ministry of Health, but there is a very strong aspect of intersectoral collaboration in health. इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर प्रिव्यू तो नहीं आती, लेकिन उनका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है. मसलन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. तो इनको हम कहते हैं यानी ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं which are not located within the health sector, within the ministries of health. So mental health is one such case which falls at the crossroads of number of other ministries as well. For example, एक intervention हमारे जो president साहब हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके साथ मिलके हमने डेवलप की थी कि जो teachers training in mental health so that वो बच्चों को सही तरीके से उनकी नशोनुमा हो सके.
तो उसमें आप खाली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काम नहीं कर सकती, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज टू वर्क विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इट इज primarily when it comes to health, it is responsibility of Ministry of Health, but then there are other people involved in it. And this is another area where a lot of innovation is needed. And actually in Pakistan, a lot of commendable work is happening in mental health. And if you have time, I can explain that. We can take that after we end the discussion online. एक बड़ा important सवाल है, सबने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपने जो इनोवेशन की एग्जांपल्स कोट की हैं, वेरी ओवरवेलमिंग, और अभी आपने बात की कल्चर इश्यूज की और स्टेटस को की। तो पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन के हवाले से जो चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं और जो उसके मसाइल हैं, उससे हम कैसे कल्चरली एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, इसके लिए एक अटेम्प्ट किया गया था कि बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को इन्वॉल्व किया गया, उलमा को किया गया, ताकि मुख्तलिफ फ़ुक़ात के जो लोग हैं उनकी कोई भी अगर अभाव है तो उसको दूर किया जाए, लेकिन फिर भी इस बिकम अ पॉलिटिकल इशू rather than a medical issue. जी, मैंने इसको जी बड़ा क्लोजली देखा है, क्योंकि ये इट्स एनेथमा ऑन पाकिस्तान's name, because पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ रह गए दुनिया में जो पोलियो अभी तक खत्म नहीं कर सके। इट्स ए मेजर चैलेंज फॉर अस एंड वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। लेकिन ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू एट द सेम टाइम, और इसमें जहाँ हम सोशल मीडिया की इतनी बात करते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन की, उसकी पॉजिटिव जो उसने एक कंट्रीब्यूट किया है, वहाँ इसी सोशल मीडिया की वजह से इतनी रॉन्ग परसेप्शंस डेवलप हो गई हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में कि आप में से अगर कुछ लोगों को पता है कि 2019 अप्रैल में केपी के अंदर एक वाक़या हुआ जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वैक्सीन के इस्तेमाल की वजह से बीमार पड़ गए हैं। उसका इतना डैमेजिंग इफेक्ट हुआ और इतना उसने लोगों की और पेरेंट्स की परसेप्शंस को खराब किया कि अभी तक हम वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट, लेट मी नॉट नेम एनीबॉडी, और इसके लिए इस वक्त गवर्नमेंट बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रही है, और हम इसको वी वांटेड टू मेक पाकिस्तान पोलियो फ्री येस्टरडे, और हम इसके ऊपर अब दोबारा से काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। इट हैज़ टू फिनिश, लेकिन इसमें चैलेंजेस बड़े हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। दैट इज ट्रू, एंड मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमें आपको मौका मिलेगा अगला ऐसा निशिस्त का। We would like to do a session, by the way, and we will invite people. Only we will choose a limited audience. These बच्चे हम online social media पे call करेंगे. Those who, and we will put up a questionnaire with you so that the right people are in the room, whoever and wherever you are from. And we will have Dr. Saab and a few other experts, and we will talk very focused on key problems. We will put up the agenda so that we can solicit some solutions and work around it. And we will inshallah be in touch online. Thank you so much for all the questions. I know there are always a lot, और आप सबका शुक्रिया ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने फिजिकली ज्वाइन किया, प्लीज स्टे हियर। आपके सवालात को हम यहाँ से ऑफलाइन होके भी ले लेंगे, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ज्यादा देर से ऑनलाइन मौजूद हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें और होल्ड करूँ उस टाइम से जो मैंने उनसे प्रॉमिस किया। बट इतनी मजेदार गुफ्तगू है, इतना कुछ जानने की जरूरत है। ही इज अ ट्रेजर को, एंड जितना बैठे उतना कम है। एक फन फैक्ट, आई डोंट नो आप लोग कितना जानते हैं ये बात, आपने स्टीफन कोवी की किताब पढ़ी होगी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उसका उर्दू तर्जुमा करने वाले भी डॉक्टर साहब। तो माशाल्लाह आप, और ये भी बड़े एजाज की बात है कि मैं फन फैक्ट तो नहीं है यार। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपकी इस पर्सनालिटी के बहुत सारे जो रुख हैं, जिनसे इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग सीखेंगे और सीख रहे हैं, वो ये है कि 7 पुरअसर लोगों की जो 7 आदात के नाम से किताब है, इसकी रिसेंटली एक तकरीब हुई और मैं उसमें गया, उसमें अनलीप थी, उन्होंने बताया, जी मैं मौजूद था, और उस वक्त जो बात बताई मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि बहुत अरसा पहले इन्होंने वॉलंटरीली एक किताब पढ़ के उनसे परमिशन लेके और मिले भी माशाल्लाह, और न जाने और भी कितना काम किया इस हवाले से स्टीफन के साथ, स्टीफन कोवी के साथ ट्रांसलेट कर दी। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो जफर मिर्जा जो नाम लिखा हुआ किताब के ऊपर वो कौन है, और
और इतने सालों बाद उसकी जो आप समझ लें तकरीबन रोनुमाई कह लें, बुक लॉन्च कह लें, आफ्टर मेनी इयर्स हुई, because he always stayed very under the ground, mashallah, very low profile he kept on that. Lekin I am very pleased to share with you, a little birdie tells me that Dr. Zafar has agreed to do live sessions covering the 7 habits of highly effective people here at the NIC. And he will discuss each habit in one episode. So we are launching today. Thank you, sir. I got this 7 sessions, one on each of the episodes, exclusively here at the NIC. Inshallah, we'll do that live as well for all of you, ताकि हम मज़ीद जान सकें. और मैं यकीन रखता हूँ कि जब आप इन 7 आदात के बारे में जानेंगे, तो ना सिर्फ आप किसी को मुतासिर कर सकेंगे, आप खुद उस पुरअसर शख्सियत की तरफ जा चुके होंगे. बिफोर आई एंड दिस, हमारा एक नॉर्मल ट्रेडिशन है कि हम एक रैपिड फायर करें, लेकिन मौका नहीं मिला. लेकिन फिर भी मैं, और नॉर्मली ये मुख्तलिफ चीज़ों को जानने के लिए होता है, सबके हमारे स्टार्टअप्स के लिए जो आपने देख रहे हैं, बहुत क्विक 1 वर्ड आंसर, लेकिन जो फौरन आपके माइंड में आएगा. So failures are accepting that you are not able to do something. Thank you. One message for startups, what would you say? One. Persistence. Very good. One person that inspired you. My teacher. One book that you would read again and again and again. The Grandest Challenge. The Grandest Challenge. By who? This is by Abdullah Dar and Peter Singer. And this is about exactly what we have talked today about health innovation. Abdullah Dar and Peter Singer. अगर आप ये आपको मिल जाएगी इस पे Amazon नहीं आपको मेरा हाल है कि PDF पे भी मिल जाएगी. लेकिन इसको अगर आप हेल्थ इनोवेशन में इंटरेस्टेड हैं, इसको जरूर पढ़ें, बड़ी इंस्पायरिंग किताब है. For all you watching, please do get this book, The Grandest Challenge, if you're a fan of health innovation. One lesson that your mentor taught you is keep the right worldview. Keep the right worldview. Very nice. Your one regret. Do I have any regrets? None. Zabardast. And leadership for you is? Leadership for me is an attitude and not authority. Zabardast. With this, I thank you once again, and with these great words, that leadership is an attitude and not an authority. Very humble, very profound words. Thank you so much, Dr. Saab. I am sorry कि टाइम की किल्लत है, मेरा दिल तो कर रहा है कि और बात हो, लेकिन हम ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने एग्री किया यहाँ पे 7 हैबिट्स के हवाले से. Thank you so much, everyone. खुदा हाफिज. So this is we are signing off online from the session. Thank you for your questions. मैं कोशिश करूँगा कि ये सवालात अगर आप प्लीज कॉपी कर लें, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं डॉक्टर साहब को ईमेल कर सकूँ, और जो भी हमें इसके कोई जवाब अगर आते हैं कलेक्टिव, तो we can share with you, ताकि those who feel left out, because there are hundreds still popping up. And yeah, so thank you, Ji. Khuda Hafiz. I'm very thankful to NIC to give me this opportunity to talk with so many of you online and physically here, and I'm especially thankful to my friend Parvez Abbasi sir to give me this opportunity. Thank you.